Hello dear learners, welcome back to Study with Buddy. In this video, we are going to learn about metals and non-metals, that is chapter number 3 from your NCERT class 10 science. Okay, so without wasting much time, let's start with the today's topic. So first of all, we will be learning about physical properties of metals. So physical properties of metals. The first one is metals are solid. All the metals are solid. जितने भी metals होते हैं they are in solid state, but there is one exception, that is mercury, which exists not in solid state but in some other state at room temperature. Metals are hard. जो metals होते हैं वो hard होते हैं, but there are some metals like lithium, potassium and sodium which are not hard. These are soft metals. ये इतने soft होते हैं that we can cut them even with the help of a knife. So lithium, potassium and sodium are exceptions in case of hardness of metal. The third property is that the metals have metallic luster. Luster means the property to shine. जो metals होते हैं they can shine. कितने सारे metals के आप example ले सकते हो? For example, gold, silver. These are metals and they used to shine. The next property is metals are malleable. Malleable means that the metals can be beaten into thin sheets. जो metals हैं उन्हें हम sheet की form में obtain कर सकते हैं. इसकी best example क्या है? Aluminium foil. हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में. तो aluminium is an example of metal and aluminium foil is an example of the sheet which is obtained from the metal. So next property is metals are ductile. Ductile means that the metal can be drawn into wires. जब हम metal को किसी wires की form में obtain कर सकते हैं, हम उसकी help से wire बना सकते हैं. That property is called as ductility. So इसमें किस metal की example ले सकते हैं हम copper की example ले सकते हैं. Next point is metals have high melting point. जो metals होते हैं उनका melting point high होता है. This gallium and cesium have low melting points. They melt in the palm of the hand. In every case there are some exceptions. Same way में high melting point of metals में भी हमारे पास exception है, which is gallium and cesium. The next property is that the metals have high boiling point. Metals का boiling point high होता है. Metals are good conductor of heat and electricity. जो metals हैं these are good conductor of heat and electricity. The best conductor of heat are silver and copper. Best conductor of heat are silver and copper. And the poor conductor of heat are lead and mercury. Next is metals are good conductor of electricity and best conductor of electricity are silver and copper. जो हमारे घरों में wires use होती हैं उसमें भी हम copper wire का usually use करते हैं. So copper is a good conductor of electricity. Metals are sonorous means they produce sound. जो metals होते हैं जब हम उन्हें आपस में strike करते हैं और when they are beaten they produce sound. इसके एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? अगर आपके स्कूल्स में इलेक्ट्रिक बेल ना होकर सिंपल बेल है तो जो वो बेल यूज की जाती है दैट इज फॉर्म ऑफ मेटल एंड वो कितनी साउंड प्रोड्यूस करती है यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर, राइट? सो लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. Non-metals may be solid, liquid or gases. जैसे जो metals हैं they exist in solid state only. The non-metals can be in solid state, liquid state or in the form of gases. Solid metals, solid non-metals कौन से होते हैं? Carbon, sulfur, phosphorus, etc. Liquid form में कौन से non-metals होते हैं? Bromine. गैसेस की फॉर्म में कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, एक्सेट्रा. सो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट.
जैसे हमने मेटल्स के केस में पढ़ा था कि मेटल्स हार्ड होते हैं एंड नॉन मेटल्स जो है दीज आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो नॉन जैसे देखो हमने मेटल्स में पढ़ा था दैट मेटल्स आर हार्ड, बट उसमें एक्सेप्शन क्या थी हमारे पास, सोडियम मेटल विच कैन बी कट इवन विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, सोडियम मेटल उसमें एक एक्सेप्शन थी। सेम वे में नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं बट there is one non-metal that is hard which is diamond, and even diamond is the hardest natural substance. So non-metals do not have luster except iodine crystal. तो metals होते हैं वो shine करते हैं, metals are shining in nature but non-metals do not shine. The only non-metal which shine is iodine crystals. Non-metals are not malleable. जो metals होते हैं वो malleable होते हैं, उन्हें हम sheets की form में obtain कर सकते हैं, but non-metals are non-malleable. non-metals को हम sheet की form में obtain नहीं कर सकते हैं। आप इसमें से example ले लो ना, अभी अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस की कोई sheet थोड़ी ना बना सकते हैं हम, राइट ना हाइड्रोजन की बना सकते हैं, ना कोई सल्फर की ऐसी शीट बन सकती है। सो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स हैं उन्हें हम वायर्स की फॉर्म में भी नहीं ऑब्टेन कर सकते, उनसे वायर्स नहीं बनाई जा सकती। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। जो नॉन मेटल्स सॉलिड होती हैं, जो लिक्विड होती हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। The non-metals which are solid and liquid have low boiling point. उनका melting and boiling point दोनों ही low होते हैं। Non-metals are bad conductor of heat. जो non-metals होते हैं they do not conduct heat. They are poor conductor of heat. Non-metals are bad conductor of electricity also, but graphite is the non-metal which is known for its conductance. Graphite is a good conductor and is a non-metal, so graphite is an exception here. Non-metals are not sonorous. जो non-metals होते हैं वो sound produce नहीं करते हैं। So dear learners, now we are going to start with the chemical properties of metals. जैसे हमने physical properties of metals and non-metals पढ़ी, same way में अभी हम देखेंगे कि metals and non-metals chemically कैसे react करते हैं, इनकी chemical properties क्या हैं। So the first one is reaction with oxygen. इसमें हम पढ़ेंगे जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है then what happens, what it forms, प्रोडक्ट की क्या फॉर्मेशन होती है एंड उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, राइट। सो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर हम पहले एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे जो सभी मेटल्स के लिए वैलिड होगी, दैट इज मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ये जो हमने लाइन की फॉर्म में लिखा था उसी चीज को हम अपने इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अभी हम कुछ मेटल्स की एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर हम कुछ मेटल्स कंसीडर करेंगे और हम देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है और कौन से मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। When copper is heated, it combines with oxygen to form copper oxide. कॉपर को जब हम हीट करते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ में उसकी रिएक्शन होती है, it forms copper oxide. Copper oxide is a black layer. Okay. So next example is of aluminium. जब aluminium को हीट किया जाता है, it combines with oxygen to form aluminium oxide. यहाँ पर हम aluminium को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं and it forms aluminium oxide. The next one is some metal oxides are basic oxide. कुछ ऐसे metal oxide होते हैं जो basic होते हैं because they react with water to form bases. और ये हम बेसिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वे वाटर के साथ में जब रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म बेस। फॉर एग्जांपल सोडियम की यहाँ पर एग्जांपल ली गई है, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड, और जो सोडियम ऑक्साइड है जब वो वाटर के साथ में रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी,
sodium hydroxide, which is a base. Therefore, this sodium oxide is a basic oxide. सेम वे में यहाँ पर है some metal oxides show acidic and basic properties. कुछ ऐसी metal oxides होती हैं जो acidic and basic दोनों properties show करती हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? Amphoteric oxides. For example, aluminium oxide, zinc oxide, etc. यहाँ पर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन देखेंगे कि जब वे एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl that is हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर. तो यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ बेसिक ऑक्साइड बिकॉज इट इज एक्टिंग विद एन एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर. सेम वे में जब हम सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन होती है, इट फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, अगेन सॉल्ट प्लस वाटर. अगर ये बेस है देन इट मस्ट बी अ एसिडिक ऑक्साइड, राइट? सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स. जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने की जो रिएक्टिविटी है, या फिर उनकी टेंडेंसी है, वो हर किसी मेटल के लिए डिफरेंट होगी, सभी के लिए सेम नहीं होती. सो अभी हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि वो मेटल्स फास्टली रिएक्ट करते हैं, स्लोली रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करते भी हैं या नहीं करते, राइट? So first example is potassium and sodium. Potassium and sodium reacts vigorously with oxygen and catch fire if kept in open. तो पोटाशियम एंड सोडियम ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ में बहुत ज्यादा फास्टली रिएक्ट करते हैं एंड दे कैन कैच फायर. अगर उन्हें हम ओपन में रख दें तो वो क्या है? दे कैन कैच फायर. And that is why they are stored in kerosene to prevent burning. तो ये बहुत ही एक important point है, इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, why some metals like potassium and sodium are stored in kerosene and not in open. तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? That metals like potassium and sodium react vigorously with oxygen and they can catch fire if they are kept in open, and that is why they are stored in kerosene to prevent the burning. Okay, so the next example is of magnesium. When magnesium is heated, it burns with bright flame. तो मैग्नीशियम को हीट करेंगे तो वो एक ब्राइट फ्लेम के साथ में बर्न करेगा. If iron is heated, it glows brightly. अगर हम आयरन को हीट करते हैं तो वो brightly ग्लो करेगा. If copper is heated, it does not burn but forms a black coating of copper oxide. इसकी रिएक्शन हमने पढ़ी भी थी कि जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कॉपर को हम हीट करते हैं, वो प्रॉपर्ली बर्न नहीं करता बट फॉर्म्स अ ब्लैक लेयर और ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड, right? So next is silver and gold does not react with oxygen even at high temperature. Silver and gold ऐसे metals हैं जो high temperature के ऊपर भी ऑक्सीजन के साथ में react नहीं करते हैं, right? And that is why they are used in a number of ways, like they are used for making jewelry. Some metals like magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. forms an oxide layer over it which prevents further oxidation. They are called self-protecting metals. तो कुछ metals जैसे कि magnesium, aluminium, zinc and lead, ये क्या करती हैं? They form an oxide layer over it. ये अपने ऊपर एक oxide layer बना लेते हैं जिससे कि they can prevent them from further oxidation. उसके बाद में उनकी further oxidation नहीं होती, and that is why they are called as self-protecting metals. जिन metals को एक specific name दिया जाता है या फिर एक specific category में उन्हें classify किया जाता है, they are very important from examination point of view. So self-protecting metals are important. A question can be asked to you, name some self-protecting metals and why these metals are called as self-protecting metals. So there you need to mention that there are some metals like magnesium, aluminium, zinc, lead, etc.
which forms an oxide layer over it and prevents them from further oxidation, and that is why they are called as self-protecting metals. Right? So, okay. Now we will study the reaction of metals with water. Water के साथ में metals की reaction को अब हम study करेंगे. Metals react with water to form metal oxides or metal hydroxides and hydrogen. जब metal के साथ में metal को water के साथ में react करवाते हैं, they form metal oxides or metal hydroxide and hydrogen. यहाँ पर हम कुछ metals की example लेंगे. लाइक जब सोडियम को वाटर के साथ में रिएक्ट किया जाता है, इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. इसके बाद में जब पोटाशियम की रिएक्शन होती है, इट फॉर्म पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. जब कैल्शियम के साथ में रिएक्शन होगी, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. एंड जब हम एल्यूमिनियम एंड आयरन की रिएक्शन करवाते हैं, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड, rather they form metal oxides. Like जब एल्यूमिनियम की वाटर के साथ में रिएक्शन होगी, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. सेम वे में जब आयरन की वाटर के साथ में रिएक्शन होगी, इट विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो अभी हम यहाँ पर भी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे कि वाटर के साथ में रिएक्ट करने के लिए जितने भी मेटल्स हैं, उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है. The first one is sodium and potassium. Sodium and potassium reacts violently with cold water. Sodium and potassium इतने ज़्यादा reactive होते हैं that they can react even with cold water. वो cold water के साथ में भी react कर जाते हैं to form sodium hydroxide and hydrogen and catch fire. And same way में potassium hydroxide and hydrogen and they will catch fire. Calcium reacts less violently with water to form calcium hydroxide and water and does not catch fire. जो calcium है, that is not as reactive as sodium and potassium, and it forms calcium hydroxide and hydrogen. There will be hydrogen, not water, and form hydrogen and does not form and does not catch fire. Magnesium reacts only with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. ये magnesium की reaction होगी. Metals like aluminium, iron, zinc react only with steam to form the metal oxides and hydrogen. तो ये जो हमने देखा कि कुछ metals ऐसे हैं जो hydroxide form करते हैं, कुछ metal ऐसे हैं जो oxides form करते हैं. तो इसका reason क्या है? जब metal water के साथ में reaction होगी, they will form hydroxide. But when they are reacting only with the steam, they will form the oxides. Okay. So there are some metals like lead, copper, silver, gold which do not react with water. जो gold and silver है, ना तो ऑक्सीजन के साथ में react करते हैं, ना ही water के साथ में. Okay, so now we will learn the reaction of metals with the acids. Acid के साथ में metal कैसे react करते हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Like metals react with dilute acids to form salt and hydrogen. Metal dilute acid के साथ में react करते हैं to form the salts and hydrogen. यहाँ पर general reaction है, metal plus dilute acid leads to the formation of salt and hydrogen. अब हम यहाँ पर कुछ example consider करेंगे. Like पहले magnesium की, magnesium जब dilute HCl के साथ में react करेगा, it will form magnesium chloride and hydrogen. जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी, it will form aluminium chloride and hydrogen. Same way में zinc chloride and hydrogen and iron chloride and hydrogen. So my dear students, क्या होता है कि यहाँ पर you need to learn the general reaction. जो आपको general reaction बताई गई है, आपको वो learn करने की जरूरत होती है. इसके बाद में आप कोई भी मेटल लेंगे तो जो रिजल्ट आने वाला है, प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन सेम ही होती है सभी के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हमने मैग्नीशियम लिया है तो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा. अगर हमने एल्यूमिनियम लिया है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होगा. अगर जिंक लिया है तो जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा. यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर द जनरल रिएक्शंस, एंड जो स्पेशल केस होते हैं वो तो आपको लर्न करने ही होंगे. The reactivity varies from metal to metal. Same way में जैसे हमने first two cases में पढ़ा, third case में भी same है. Metal to metal जो reactivity है, जो react करने की tendency है metals की acid के साथ में, वो different होती है, change होती रहती है. For the above metals, the decreasing order of reactivity is
जो मेटल हमें ऊपर दिए गए हैं, हमने ये जो 4 रिएक्शंस पढ़ी हैं, जो 4 एग्जांपल्स दी हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्या है? मैग्नीशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, एल्यूमिनियम, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में जिंक, जिंक के बाद में आयरन, तो जो रिएक्टिंग टेंडेंसी है, जो रिएक्टिविटी है, वो डिक्रीज होती जाएगी। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एट स्केल। आप पढ़ेंगे कि ज्यादातर केसेस में सिल्वर एंड गोल्ड किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट नॉट इन ऑल द केसेस, राइट? So this is very important point, my dear learners, from the examination point of view. आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो नाइट्रिक एसिड है, why nitric acid do not leads to the evolution of hydrogen gas, और why hydrogen gas is not evolved when metal react with nitric acid. तो इन एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि हमने dilute एसिड की जितनी भी एग्जाम्पल्स ली हैं, सभी के सभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ली है, नाइट्रिक एसिड के साथ में कोई भी एग्जांपल नहीं की। सो इसका क्या रीजन है? लेट्स लर्न अबाउट इट। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड itself is reduced to oxide of nitrogen। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे, जब ये जो नाइट्रिक एसिड है कॉपर के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है? कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होगा, साथ में वाटर एंड निट्रिक ऑक्साइड, राइट? तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई थी उसे ऑक्सीडाइज कर दिया गया नाइट्रिक एसिड की तरफ से, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंड दैट इज व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। So now we will learn about the reaction of metals with metal salt solution। metals की दूसरे metal के salt solution के साथ में कैसे reaction होगी, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। A more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution, and this reaction is known as displacement reaction। ये reaction आपने chapter number 1 में भी जरूर पढ़ी होगी, that जो ज्यादा reactive metal होता है वो कम reactive metal को उसके salt solution से displace कर देता है। For example, magnesium displaces copper from copper sulfate solution। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इस वजह से क्या है, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वहां से मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ से वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा, एंड क्या फॉर्म कर देगा? मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर साइड में अकेला रह जाएगा। सेम वे में जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो जो जिंक है, जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड कॉपर। सेम वे में आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आयरन भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर एंड क्या फॉर्म करेगा? आयरन सल्फेट, एंड कॉपर जो है साथ में अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास पहले कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, तो जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है हमारे पास, वहां पर जब हमने मैग्नीशियम पाउडर को ऐड किया, तो मैग्नीशियम तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन, एंड जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। सेम वे में जब आयरन मेल को ऐड किया जाता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो पहले आप देख सकते हो इसका कलर वाज ब्लू, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ब्लू इन कलर, राइट? तो थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा कि जो आयरन सल्फेट सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, आयरन कॉपर को रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो क्या होगा? आयरन सल्फेट सोल्यूशन फॉर्म होगा, एंड जो कॉपर है वो आयरन के ऊपर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। Okay, so now we will learn about the reactivity series of metals। जैसे कि हमने इस स्लाइड में देखा कि कुछ मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल कम रिएक्टिव होते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, बट हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? इसके लिए वी हैव दिस रिएक्टिविटी सीरीज। सो लेट्स लर्न अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज।
The arranging of metals in the decreasing order of reactivity is called the reactivity series of metal. Reactivity series किसे कहते हैं? जब हम metals को उनकी reactivity decrease होते की form में arrange करते हैं, that is called as reactivity series. So arranging of metals in decreasing order of reactivity. Reactivity के decreasing order में किसी भी metal को arrange करना is called as reactivity series. यहाँ पर आप देख सकते हो that the जो ऊपर वाले metals हैं, these are most reactive atoms. जैसे जैसे हम down जा रहे हैं, reactivity decrease हो रही है, and last पर जो metals होंगे, these are least reactive metals. यहाँ पर आप देख सकते हो पोटाशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, देन इज सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम. तो जो फर्स्ट टू मेटल्स हैं इनके बारे में तो हम अब तक कितना ज्यादा पढ़ चुके हैं, दैट पोटाशियम एंड सोडियम आर most reactive metals. We have learned about the reactivity of potassium and sodium. कि जो potassium and sodium है, these are the most reactive atoms. ये इतने reactive होते हैं that they can catch fire. So जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आते जाएंगे इस सीरीज में, जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो डिक्रीज होती जाएगी. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सिल्वर एंड गोल्ड है, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव एटम्स. इन्हें जो है सबसे नीचे रखा जाता है मेटल्स की सीरीज में इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिविटी, एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ये ज्यादातर केसेस में जो है रिएक्ट नहीं करते हैं, राइट? ना तो इनकी वाटर के साथ में रिएक्शन होती है, ना ही ऑक्सीजन के साथ में, और ना ही एसिड्स के साथ में. That is why these are the least reactive metals. Okay, so now we will learn how metals and non-metals react. Here it is कि metals and non-metals कैसे react करते हैं, how metals are formed and how non-metals are formed, why some of the elements are called metals whereas others are called non-metals. So इस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे. So metals क्या है? Metals are those atoms which lose electron and become positive ions. So they are called electropositive elements. जो metals हैं उन्हें हम electropositive elements भी बोलते हैं, क्योंकि these lose an electron, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं to form a positive ion. यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे सोडियम की. एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं. लाइक सोडियम की एग्जाम्पल लें. सोडियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11, राइट? तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगी 2 8 1. तो इसके पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, देन इट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. अगर ये सिर्फ 2 8 होता तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होनी थी, या फिर ये 2 8 8 होता तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होनी थी. तो अभी 7 एटम्स को लेने की वजह से और 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से ज्यादा इजी क्या है इसके लिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे. जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी 2 8. और जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इट विल फॉर्म अ पॉजिटिव आयन. सोडियम, इट फॉर्म्स सोडियम आयन प्लस लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये क्या बना देगा? सोडियम आयन, राइट? यहाँ पर हमने थ्योरेटिकल वे में कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है. द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 1. इट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसके पास में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसे हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोला था. सो इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन. वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा एंड फॉर्म सोडियम आयन. एंड जब सोडियम आयन को फॉर्म करेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगी. इट विल अटेन noble gas configuration, right? So this is an example of metal. जो metals होते हैं, these are positive in nature. These are also called electropositive elements. यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकती है Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव. यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर हमने सोडियम की एग्जांपल ली तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था. अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे. मैग्नीशियम की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी यहाँ पर 2 8 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे. यहाँ पर ये क्या बनाएगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा. करेक्ट? सो नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट
नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स उन्हें बोला जाता है विच गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव आयन। तो मेटल्स हैं ये डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वेयर एज नॉन मेटल्स जो हैं गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? एटॉमिक नंबर इज 17। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमारे पास? 287। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होती तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं? दैट इट इज स्टेबल एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बट हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन कम है टू अटेन दिस स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इससे क्या होगा? इट विल फॉर्म अ क्लोराइड आयन एंड इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर +1 कर दें तो ये 8 हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 288। मतलब जो हमारे पास क्लोरीन था उसे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और दे दें तो ये क्या बना देगा? क्लोरीन नेगेटिव। एंड दिस विल बी द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। Now we are going to learn about formation of sodium chloride molecule, that is NaCl. This is also called as common salt. तो अभी हम जो है सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सोडियम एंड क्लोराइड जो है अपने आयंस को गेन एंड लूज करके सोडियम क्लोराइड को बनाते हैं। तो हमने जैसे सोडियम की एग्जांपल की थी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 281 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 281। इस केस में क्या है? सोडियम के पास में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। एंड सेम वे में जो क्लोरीन की अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 17 एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा टू गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करेंगे? जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम के पास में जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा एंड दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगी एंड दे विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो अभी हम देखते हैं हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। The atomic number of sodium is 11 and its electronic configuration is 281. It has one extra electron or one valence electron and it loses one electron to form Na positive ion. The atomic number of chlorine is 17. आप ऐसे भी कर सकते हो, जब हमने मेटल्स की फॉर्मेशन में ये एग्जांपल की थी तो हमने यहाँ पर रिएक्शन लिखी थी that sodium leads to the formation of sodium ion plus electron को lose कर देता है। तो ये लाइन लिखने के बाद में आप ये एक रिएक्शन लिख सकते हो। उसके बाद में again we will write the atomic number of chlorine is 17. Its electronic configuration is 287 and it has 7 valence electrons. It needs to gain one electron to form chlorine ion, and then the attraction between sodium ion and chloride ion result in the formation of sodium chloride molecule, that is sodium chloride. तो यहाँ पर हम एक वे में इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे that sodium plus chlorine. तो सोडियम के पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट की फॉर्म में एंड क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सोडियम को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, वेयर एज क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। तो सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो ये क्या बनेगा? सोडियम के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा एंड जो क्लोरीन है इट विल हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स। कुछ ऐसी फॉर्मेशन होगी एंड इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यहाँ पर आप ऐसे रिएक्शंस भी लिख सकते हो। सोडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अभी जो क्लोरीन है उसने सेम यही इलेक्ट्रॉन को ले लिया
and leads to the formation of chloride ion. तो अभी देखो एक आयन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये क्या करेंगे, इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट. So same way में is the formation of magnesium chloride molecule. तो atomic number of magnesium is 12, electronic configuration is 2A2 and it has 2 valence electrons. It loses 2 electrons to form magnesium 2 positive. The atomic number of chlorine is 17. So this is the theoretical portion. Let me show you the way we will represent it. तो हमारे पास क्या होगा, magnesium, हमारे पास वह फॉर्म क्या होगा, MgCl2, मतलब हमें एक Mg लेना है एंड 2 Cl. मैग्नीशियम लिया हमने, 2 क्लोरीन ले लिए, तो मैग्नीशियम के पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे एंड क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7. सेम वे में इस क्लोरीन के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7. तो जब क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे देगा to both of the chlorine, it will leads to the formation of magnesium chloride. ठीक है. Next is ionic compounds. Ionic compounds को हम और क्या बोलते हैं, electrovalent compounds. These are also called as the electrovalent compounds. So ionic compounds are the compounds formed by the transfer of electron from metal to a non-metal. तो ionic compound कब बनते हैं, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना किसे ट्रांसफर कर देगा, क्लोरीन को, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आयनिक कंपाउंड. तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर मेड अप ऑफ आयंस. तो जो फॉर्मेशन है आयनिक कंपाउंड्स की कैसे होती है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दे आर मेड अप ऑफ आयंस. They are crystalline structure. इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन. They have high melting points and boiling point. इनका melting and boiling point high होता है. They are soluble in water but insoluble in inorganic solvent. ये water में तो soluble होते हैं but inorganic solvents like petrol, kerosene etc. में soluble नहीं होती. They conduct electricity in a molten state or in a solution. जब ये molten state में होते हैं, जो solution में होते हैं, तो they conduct electricity. Now we are going to start with occurrence of metal. We will learn about how metals occur, how we obtain them. हमें metals कैसे मिलते हैं, किस फॉर्म में हम उन्हें obtain करते हैं, what are the processes involved, एंड कैसे उनकी रिफाइनिंग की जाती है, जो मेटल्स हैं हम तक पहुंचने से पहले कितने ज्यादा प्रोसेसेस अंडरगो करते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. सो सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, platinum etc. are found in the free state in the earth's crust because they are least reactive. अभी देखो जो एलिमेंट्स हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये फ्री स्टेट में हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं बिकॉज दीज आर लीस्ट रिएक्टिव. ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, दैट इज व्हाई these can be found in the free state. वो किसी के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं, ज्यादा कार्बोनेट्स की फॉर्म में नहीं अवेलेबल होते हैं. So these are present in free state. Most metals are found as oxide. बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्साइड्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है उन्हें, सल्फाइड की फॉर्म में या फिर हैलाइड की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं. So there are some terms like minerals. Minerals हम किन्हें कहते हैं? These are the elements or compounds which occur naturally inside the earth's crust. जो एलिमेंट्स या जो कंपाउंड्स अर्थ क्रस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली अकर करते हैं, उन्हें बोलते हैं मिनरल्स. Whereas second is ore. ore क्या होती है? ore is a mineral from which metal can be extracted profitably. और उन मिनरल्स को बोला जाता है जिनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट टू विद द प्रॉफिट.
तो मिनरल्स वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट में, एंड जिन मिनरल्स में से हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओर्स. सो नेक्स्ट इज गैंग्यू. It is the impurities present in ore like rock particles, sand particles, clay particles. अभी जो भी हमें मेटल्स मिल रहे हैं, जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो हमें प्योर स्टेट में मिलेंगे. उनमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, जैसे कि रॉक पार्टिकल्स हो सकते हैं, सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, क्ले पार्टिकल्स हो सकते हैं, और कई तरीके के पार्टिकल्स हो सकते हैं जो इम्प्योरिटीज हो सकती हैं which are present along with the metals or the elements, right? So next is extraction of metal from their ores. तो हमने पढ़ा कि मेटल्स को हम ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स इन द 3 मेन स्टेप्स. मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 मेन स्टेप्स होते हैं which are concentration of the ore, or that is also known as enrichment of the ore. Second is reduction to its metal, and third is refining. सबसे पहले उसकी concentration को हम enrich करते हैं. like concentration of ore से हमें मेन बेसिक आइडिया किया किस चीज से मिलता है कि जो impurities present होती हैं उन्हें हम रिमूव कर देते हैं. ठीक है, that is called concentration of ore. that is reduction to metal. अभी जो हमें ore में से जो भी मेटल मिल रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, वो प्योर स्टेट में नहीं होंगे. सबसे पहले तो हम उसकी रिडक्शन करेंगे मेटल में. थर्ड स्टेप होगा उसको प्योरीफाई करना, प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल, दैट इज आल्सो नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, अभी हम इन स्टेप्स के बारे में डीप में पढ़ेंगे. लाइक कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. कंसंट्रेशन ऑफ द ओर के बारे में बड़े अगर हम देखें तो इट इज द रिमूवल ऑफ गैंगियो इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर बाय डिफरेंट मेथड. डिफरेंट मेथड को यूज करके जब हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज. इट इज रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है, सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. Metals which are low in activity series or reactivity series can be reduced to metals by heating in the presence of oxygen. तो जो हमें सिंपल मेटल्स मिल रहे हैं which are low reactive, तो उन्हें तो अगर हम सिंपल हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं. सिंपल हीटिंग से ही हमें मेटल्स मिल जाती हैं, राइट? तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे. मर्क्यूरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर कॉल्ड एज सिनाबार. तो एक आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मर्क्यूरी के ओर को हम क्या बोलते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है. राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड इन obtaining of mercury from the cinnabar or the ore of mercury. So यहाँ पर आपको ये एग्जांपल को एक्सप्लेन करना होगा. Mercury is obtained from its source cinnabar by heating in the presence of oxygen. In the presence of oxygen हम उसे हीट करेंगे. When it is heated in the presence of oxygen, in its जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे हीट करते हैं, it is first converted into mercuric oxide. सबसे पहले वो mercuric oxide की फॉर्म में obtain होती है, and on further heating it is reduced to mercury. तो क्या होता है, सबसे पहले तो जो हमारे पास ओर है सिनाबार, उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो it will get converted into the mercuric oxide, राइट? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम अगेन हीट करेंगे, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरी. सेम वे में जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ऑब्टेन करने का मेथड सेम रहता है. ठीक है, उसमें जो इक्वेशंस है वो चेंज हो सकती हैं, बट द मेथड इज गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल द लो रिएक्टिव एलिमेंट्स. लाइक अभी हम पढ़ेंगे कॉपर की एग्जांपल की. कॉपर को कैसे ऑब्टेन किया जाता है. कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर by heating in the presence of oxygen. इसमें भी सेम वही स्टेप रहने वाला है. कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड. एंड जब कॉपर ऑक्साइड को अगेन हम हीट करेंगे in the presence of copper sulfide, it will lead to the formation of copper and sulfur dioxide, right?
So this is the method of obtaining copper. Next is extraction of metals in the middle of activity series. जो metals, जो elements activity series के middle में आते हैं, जो reactive ना तो ज्यादा reactive हैं, जो less reactive भी नहीं है, जो middle में है, which are in intermediate state, उनको कैसे extract करते हैं? Let's learn about that. Metals in the middle of reactivity series like zinc, iron, lead are found as oxides, sulfides और carbonates. जो ये metals हैं, zinc, iron और lead, इन्हें हम कैसे obtain करते हैं? These are found in the form of oxide, sulfide और carbonate. It is easier to obtain metal from their oxide than from the sulfide or carbonates. अभी किसी भी मेटल को उसकी ऑक्साइड फॉर्म से obtain करना easy रहता है rather than from the sulfides or carbonates. So the non-oxide ores are converted into oxide form before reduction. तो reduction से पहले जो ये हमारे पास सल्फाइड ओर्स हैं, जहाँ कार्बोनेट ओर्स हैं, हम उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं into the oxide ores. Non-oxide ore can be converted into oxide formed by roasting or calcination. So these roasting and calcination are important from examination point of view. These are two methods जिससे हम जो है oxides में convert करते हैं carbonates and sulfide ores को, right? So first of all we'll learn about roasting. So ये roasting के बारे में है. It is heating of an ore in the presence of oxygen. तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग दोनों में ही हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो ओर को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग, एंड जब हम हीट करते हैं ओर को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन. It is used to convert sulfide ores into oxide form. जो रोस्टिंग का मेथड है, इसे यूज किया जाता है सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. रोस्टिंग का फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? इट इज हीटिंग ऑफ एन ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम हीट करते हैं. सेकंड पॉइंट इज इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड फॉर्म. ये सल्फाइड ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है. The third one is the example. यहाँ पर हम जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसे हीट करेंगे. इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड. सेम वे में कैल्सिनेशन में फर्स्ट पॉइंट होएगा दैट इट इज हीटिंग ऑफ एन ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सेकंड पॉइंट क्या होगा? दैट इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड फॉर्म. It is carbonate. It is not sulfide. It is carbonate. Dear students, please make a correction here. That calcination is used to convert carbonate ores into its oxide form. So zinc carbonate when heated in the absence of oxygen. यहाँ पर आप देख सकते हो in the presence of oxygen था. यहाँ पर in the absence of oxygen हम उसे heat कर रहे हैं. It lead to the formation of zinc oxide and carbon dioxide, right? An oxide ore is then reduced to metal by heating with the reducing agent. The most common reducing agent is coke or carbon. तो ये जिंक ऑक्साइड, दोनों ही केसेस में हमने जिंक ऑक्साइड को ऑब्टेन किया. तो जिंक ऑक्साइड को अब हम जिंक मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज कार्बन हियर, राइट? So जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, it will lead to the formation of zinc and carbon monoxide, and the condition is in the presence of heat. Next we are going to learn about thermic reaction. So sometimes the reactive metals like sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agent to obtain the metal from their oxide. तो कई बार क्या होता है, कुछ मेटल्स को हम यूज करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड है एंड हम एल्यूमिनियम मेटल को यूज कर रहे हैं टू ऑब्टेन मैंगनीज, एंड यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एंड हीट इज रिलीज्ड. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मेट रिएक्शन. थर्मेट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, हम किसी भी एक मेटल को यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और it result in the formation of simple metal, है ना? किसी ऑक्साइड से एक सिंपल मेटल की फॉर्मेशन करना is called as thermic reaction. The reaction between the metal oxides and aluminium is highly exothermic. ये बहुत ज्यादा exothermic हो सकती है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हीट रिलीज हो रही है.
So it is highly exothermic and metals are obtained in molten state. Such reactions are called Thermit reaction. तो Thermit reaction का main point क्या है? That the product formed is in molten state. ये जो थर्मिट रिएक्शन है इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो मॉल्टन स्टेट में फॉर्म होगा. Okay, so the reaction between iron oxide and aluminium produce molten iron and the reaction is used to join rail tracks, broken machine parts. अभी जो reaction है between the iron oxide and the aluminium ये प्रोड्यूस करती है मोल्टन आयरन एंड इस मोल्टन आयरन को कहाँ यूज किया जाता है to join the rail tracks and broken machine parts. यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं that iron oxide and aluminium की reaction हो रही है. It leads to the formation of iron that is in molten state and therefore it is used to join the rail tracks and broken machine parts. So here is the pictorial representation. यहाँ पर आप देख सकते हैं same is being shown here. Next is extraction of metals at the top of activity series. जो metals सबसे ज्यादा reactive होती हैं उन्हें कैसे extract किया जाता है? Now we are going to learn about that. Metals at the top of activity series like potassium, sodium, calcium, aluminium, etc. जो metals highly reactive होते हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं. That these cannot be obtained from their ores by simple heating or by heating with reducing agents. तो जो highly reactive elements होते हैं, जो highly reactive metals होते हैं, उन्हें हम simply heating, simple heat करने से या reducing agent के साथ में heat करने से उन्हें obtain नहीं कर सकते हैं. उन्हें obtain करने के लिए हम एक different method use करते हैं, that is called electrolytic reduction of their molten chlorides. So एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे इस मेथड को. When electric current is passed through the molten sodium chloride, जब सोडियम क्लोराइड की molten फॉर्म में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, the sodium metal is deposited at the cathode and chlorine gas is deposited at the anode. तो क्या होता है कि जो हमारे पास सोडियम मेटल है इट गेट्स डिपॉजिटेड एट द कैथोड एंड जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है एट द एनोड. सो माय डियर लर्नर्स, सी हियर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज के जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के बारे में वी वर डिस्कसिंग. उन्हें डिस्कस करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to use electrolytic reduction of their molten chlorides. Molten chlorides means हम किसी भी मेटल की molten chloride लेंगे, like sodium chloride हो सकता है, magnesium chloride हो सकता है, aluminium chloride हो सकता है. There can be any of the metal. हमें just उसे chloride की metal, वो मेटल की मोल्टन क्लोराइड होनी चाहिए. एंड मोल्टन क्लोराइड की फॉर्म में से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा देंगे. जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तो एनोड के ऊपर क्या बनने वाला है, गैस रिलीज होगी, दैट इज क्लोरीन गैस. एंड जो हमारे पास कैथोड होगा, कैथोड के ऊपर वो विल बी गेटिंग द प्योर मेटल. ओके, सो यहाँ पर आप पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो दैट वी वर हैविंग दिस मोल्टन सोडियम क्लोराइड. तो क्या हुआ कि थॉट के ऊपर जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन आप देखेंगे यहाँ पर सेम वे में नॉट के ऊपर सेम रिएक्शन ऊपर भी लिखी हुई है. एनोड के ऊपर क्या हुआ कि जो क्लोरीन गैस है वो सारी इकट्ठी हो गई, वेयर एज जो सोडियम मेटल है वो कहाँ पर इकट्ठा हो गया, एट द कैथोड. सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. रिफाइनिंग ऑफ मेटल. अभी हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ लिया. नाउ वी विल बी लर्निंग कि हम जो मेटल्स हमने ऑब्टेन किए हैं उन्हें रिफाइन कैसे करेंगे, इम्प्योरिटीज को कैसे उसमें से हम रिमूव करेंगे. सो द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. रिफाइनिंग ऑफ मेटल जैसे मैंने आपको बताया किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल. The most common method used for refining of metal is electrolytic refining. This is very important question from examination point of view. आपको 3 marks का question इसमें से आ सकता है. Explain the method of electrolytic refining or explain any one method of refining of metals, ऐसे करके.
So what happens in this method, a block of impure metal is made at the anode. इस मेथड में क्या होता है कि जो भी इम्प्योर मेटल है उसका एक ब्लॉक लिया जाता है, उसे एनोड के ऊपर रखा जाता है. एंड अ थिन शीट ऑफ प्योर मेटल इज मेड एट द कैथोड, और कैथोड के ऊपर उसी मेटल की एक थिन शीट रख दी जाती है which is in pure form, and the electrolyte is a salt solution of metal to be purified. और जिस मेटल को हमने प्योरीफाई करना है उस सॉल्ट सोल्यूशन को हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं. इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये हम एक एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर कि जब कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, अ ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर इज मेड एट द एनोड. यहाँ पर आप देख सकते हो ये एनोड है, एनोड के ऊपर हमने एक इम्प्योर कॉपर का एक ब्लॉक रख दिया. एंड अ थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर इज मेड एट कैथोड, और कैथोड के ऊपर हमने एक थिन शीट रख दी प्योर कॉपर की. The electrolyte is acidified copper sulfate solution, और जो ये हमने यूज किया है this solution is acidified copper sulfate solution. When electric current is passed through the electrolyte, the pure copper from the anode is deposited at the cathode. जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाएगा थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जो प्योर कॉपर है, यहाँ एनोड के ऊपर जितना भी प्योर कॉपर है that is deposited at the cathode and the impurities settle down at the as the anode would. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो impurities हैं वो यहाँ नीचे settle down हो गई है, राइट. यहाँ पर लिखा भी हुआ है impurities. इन impurities को बोला जाता है anode mud. This is called as anode mud. Okay, so this was about refining. Next we are going to learn about very important, that is corrosion. corrosion के बारे में चैप्टर 1 में भी कुछ डिस्कस किया था. Corrosion is the damage caused to metals due to the reaction of metal with oxygen, moisture, carbon dioxide, etc. corrosion उस डैमेज को बोला जाता है या फिर जो डैमेज होता है मेटल्स का ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसके वजह से जो मेटल का डैमेज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज corrosion. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ रस्ट ओवर आयरन. आपने बड़ी बार देखा होगा कि जो आयरन की सब्सटेंसेस होती हैं, आयरन की अप्लायंसेस होती हैं, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, दैट इज रस्ट. उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर उसे जंगाल लगना, जंग लगना भी बोला जाता है. So formation of green coating of basic copper carbonate over copper is also an example of this corrosion. फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड ओवर सिल्वर. तो जो सिल्वर के आप देखेंगे कि सिल्वर के चेन्स होते हैं, जैसे सिल्वर के जो सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं, तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर स्टार्ट हो जाती है आना, है ना. कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो सिल्वर है उसके ऊपर एक डिफरेंट लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है विच इज ब्लैकिश इन कलर. सो वो किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड. प्रिवेंशन ऑफ corrosion. corrosion को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग, बाय अप्लाइंग पेंट्स, बाय galvanizing, that is coating with zinc, by tinning, that is coating with tin, by electroplating, coating a less reactive metal like chromium, by alloying, that is making alloys. So these are some of the method. ये जो है आपको as it is learn करने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज alloy. अभी हम alloy के बारे में पढ़ेंगे. So alloy is a homogeneous mixture of metal with other metal or non-metal. किसी भी मेटल का दूसरे मेटल्स या नॉन मेटल के साथ में जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसे बोलते हैं alloy. फॉर एग्जांपल स्टील इज एन alloy of iron and carbon, whereas stainless steel is the alloy of iron, carbon, cobalt and nickel. ब्रास इज द alloy of copper and zinc. ये जो है ना, ये एग्जांपल्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी, बिकॉज कैसा है कि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, किसी के बारे में पूछा जा सकता है कि ये जो alloy है कौन से दो मेटल्स या नॉन मेटल से बना हुआ है, जो कौन से दो मेटल से बना है, राइट. सो इट इज वन ऑफ द
metal in an alloy is mercury. If one of the metal in the alloy is mercury, अगर जो alloy बन रहा है उसमें से कोई एक metal, मतलब कोई एक, हम 2 या 3 का बना रहे हैं तो उसमें से कोई एक mercury हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? Amalgam. Very important question. You can be asked, write a short note on amalgam or what is amalgam. 1 mark में आ सकता है. So this was all about our chapter. With this, our chapter ends.